آئیے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم دیکھیں گے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ متی 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقہ میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بریونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ آمین۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے جو سیکھیں گے وہ ہے کہ بیکم اے راک، ایک مضبوط چٹان جو ہے وہ بن جائیں۔ ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں جو کہ تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد بھی کتنی تبدیلیاں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ نہ صرف ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسا کہ آج کل بارش، طوفان، سیلاب، یہ چیزیں ہم نے پہلے دیکھی تھی لیکن اس صورتحال میں نہیں دیکھی تھی جس طرح اب ہو رہی ہیں۔ یہ دنیا جو ہے وہ کلائمیٹیکلی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ اسپرچولی بھی بہت زیادہ تبدیل ہو رہی ہے یہ دنیا، کہ ایسی ایسی بدعتیں، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی تعلیمات آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جس کا بائبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو ایماندار ہیں وہ بالکل واقعی بھیڑوں کی مانند ہے۔ ان کو جو کوئی بھی جو کچھ بتاتا ہے وہ پیچھے لگ جاتے ہیں اور ان تعلیمات کو سچا مان لیتے ہیں۔ ان کی پینیٹریشن اسٹریٹجی جو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پہلے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پہلے وہ لوگوں کو ان کی مدد کرتے ہیں، پہلے وہ ان کی ہمدردیاں، ان کی سمپتھی جو ہے وہ گین کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ان کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح کی صورتحال میں لوگ جو ہے ان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر وہ ادھر سے نہیں نکل سکتے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے، آپ کی جنریشن جو ہے اس قرض کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ کو ایک مضبوط چٹان کی طرح جو ہے وہ بننے کی ضرورت ہے۔ آپ کو ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے جو کہ صحیح کلام جو ہے وہ بتا رہے ہیں، جو کہ چٹان کی مانند ہیں۔ ہمیں ایک مضبوط نہ صرف ایماندار بننا ہے بلکہ مضبوط لیڈر بننا ہے، مضبوط قوم بننا ہے، مضبوط سربراہ بننا ہے۔ ہم جس پوزیشن میں بھی ہیں ہمیں مضبوط بننا ہے، اور خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ایماندار ہیں، جو اسپرچول لوگ ہیں، جو رائچس لوگ ہیں، ان کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط چٹان کے اوپر ہوتی ہے۔ ان کی بنیاد جو ہے وہ کسی ایسی چیز پر نہیں ہوتی جو کہ خود جو ہے وہ مستقل نہیں ہوتی۔ افسیوں اس کا 2 باب اور 19ویں-20ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر
जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तमीर किए गए हो। हमारी बुनियाद जो है वो रेत के ऊपर नहीं रखी गई, हमारी बुनियाद जो है खुदा ने मजबूत तरीन रखी है। हमारी बुनियाद जो है वो अब्राहम के ईमान के ऊपर है, हमारी बुनियाद जो है वो रसूलों के ईमान के ऊपर है, रसूलों के अमाल के ऊपर है। हमारी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह के ऊपर है, हमारी बुनियाद जो है वो कलाम के ऊपर है। हमारी बुनियाद जो है किसी एक ऐसी चीज के ऊपर नहीं है जो कि डोलने वाली हो, जो कि हिलने वाली हो, क्योंकि आजकल बहुत तरह के जलजले आ रहे हैं, बहुत तरह के भूचाल आ रहे हैं। इन चीजों में इंसान जो है हवा के तिनके की माने जो है वो उड़ जाता है, उसका कोई पता नहीं चलता। जरा सी कोई इस तरह की तालीम आई, जरा सी कोई इस तरह की बात हुई, लोग छोटी छोटी बातों पे चर्च छोड़ जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर नाराज हो जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर अपना ईमान तब्दील कर लेते हैं, जरा से फायदे की खातिर अपना मजहब चेंज कर लेते हैं। हम ऐसी सूरत हाल में मजबूत रहने की जरूरत है। और इफ्सियों का जो हमने हवाला पढ़ा है वो क्लियरली बताता है कि आपकी बुनियाद जो है वो किसी छोटी मोटी चीज पर नहीं रखी गई। बाइबल खोल के देखें, शुरू से आखिर तक अंबिया इकराम आए, रसूल आए, नबी आए, पैगंबर आए, सबने किसका मैसेज दिया? यीशु मसीह का मैसेज दिया, ईमान का मैसेज दिया, रास्तबाजी का मैसेज दिया। ये किसके लिए दिया? अपने लिए दिया? बताएं, हमारे लिए दिया। तो क्या हमारी बुनियाद जो है उनकी तालीमात के ऊपर है, या हमारी बुनियाद जो है अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी फिलॉसफी के ऊपर, अपने हालात, अपने सूरत हाल, या किसी के और के वादे के ऊपर है? ऐसा नहीं है। जिस शख्स की बुनियाद जो है वो मजबूत होती है वो कभी भी किसी भी सूरत हाल में इधर उधर नहीं होता। इस तरह का एक शख्स जो है वो डाइट्रिक बोनहाइफर था। ये नाजी जर्मनी में हिटलर के दौरे हुकूमत में ये एक पादरी था, और इसने मशहूर किताब लिखी जिसका नाम द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप। ये 1937 में उसने ये किताब लिखी गई, और उसका जो बुनियादी नुक्ता था वो ये था कि ट्रू डिसाइपलशिप मीन्स sacrifice, obedience and standing firm even against evil powers। जिसका मफहूम यह है कि हकीकी शागिर्दियत का मतलब कुर्बानी, ताबेदारी और शैतानी कुव्वतों के मुखालिफ खड़े हो जाना है। अब जो पादरी दुनिया के जालिम तरीन लोगों के वो था, दौरे हुकूमत में था, जो कि हिटलर था, जिसने लाखों लोगों को कत्ल किया था, उसकी हुकूमत में था। और शुरू से ही हिटलर जो था वो चाहता था कि वो चर्च को कंट्रोल करे। उसकी ख्वाहिश थी कि ये जितने भी पास्टर्स हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं, ये उसके ताबे हो जाएं। और उसने यहूदियों के साथ क्या किया? हॉलोकॉस्ट किया। ये हिस्ट्री में एक काला दाग जो है, धब्बा जो है वो लगा हुआ है। इस सूरत हाल में इस पास्टर के चर्च को भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन बोनहाइफर जो था वो खड़ा हो गया और उसने अंडरग्राउंड जो है वो मिनिस्ट्री शुरू की, और उसने पादरियों को तालीम देना शुरू की कि आपने इस दबाव में नहीं आना, आपको जो है वो कत्ल किया जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको आपके विजन से, आपके मिशन से हटाया जाएगा, लेकिन आपने जो है वो हटना नहीं है, आपने दबाव में नहीं आना, आपने जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस में नहीं आना, आपने स्टेडफास्ट रहना है, आपने फर्म रहना है, और आपने जो है वो उस बुनियाद पर जो कि ईमानदारों के लहू के ऊपर रखी गई, जो कि कलाम पे रखी गई, जो कि होली स्पिरिट पे रखेगी, आपने उस बुनियाद के ऊपर जो है वो कायम रहना है। इसी पास्टर ने कोशिश भी की और बहुत से यहूदियों को परसिक्यूशन से भी बचाया, लेकिन वो चट्टान की मानद हिटलर के सामने जो है वो खड़ा रहा, और बिलाखिर 39 साल की उम्र में, जस्ट 39 इयर्स की उम्र में, हिटलर ने खुद एक हुक्मनामा सादर किया कि बोनहाइफर को जो है वो फांसी दे दी जाए।
सदर खुद जो है वो उसके लिए हुक्मनामा लिख रहा है, किसी जज ने, किसी अदालत ने नहीं लिखा, उसने खुद हुक्म दिया कि इसको जो है वो फांसी दे दी जाए, और 39 ईयर्स की एज में जो है उसको फांसी दे दी जाती है। लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटा, वो मजबूत चट्टान जो है वो बन गया। हवा उसके मुखालिफ चल रही थी, तलीमात उसके मुखालिफ जा रही थी, उसको उसके स्टांस से हटाया जा रहा था, और दुनिया का पावरफुल तरीन जो है हिटलर, वो उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये पास्टर जो है वो नहीं हटा। क्या ऐसी बात है कि हमें कहा जाता है कि हम चट्टान की मानद जो है मजबूत रहें। चट्टान जो है बुनियादी तौर पर ये 3 तरह की होती है। एक जो सेडिमेंट्री रॉक जिसको कहते हैं कि रेत मिट्टी डिपॉजिट होते जाते हैं और चट्टान जो है वो बन जाती है, लेकिन ये इतनी मजबूत नहीं होती। एक होती है इग्नियस रॉक, जब लावा फटता है, जब वो लावा जो है वो निकलता है और वो ठंडा होता है तो वो एक रॉक बना देता है, ये बहुत मजबूत रॉक होती है। लेकिन एक रॉक जो है वो इससे भी मजबूत होती है, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ये हजारों साल, लाखों साल, करोड़ों साल जो है वो बनती रहती है, और एक्सट्रीम प्रेशर और एक्सट्रीम हीट जो है बर्दाश्त करके ये बनती है, और ये जो है इसको कभी सवाल नहीं आता, ये सूरत हाल किसी तरह की हो, ये मजबूत चट्टान जो है वो रहती है। माउंट एवरेस्ट आज भी उसी जगह पे खड़ा है। बहुत से तूफान आते हैं, एवलांचेस आते हैं, हवाएं चलती हैं, लेकिन आज भी साइंस ने प्रूव किया है कि माउंट एवरेस्ट जो है हर साल बढ़ता जा रहा है। केटू जो है वो भी इसी रॉक का बना है, वो हर साल जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। वो तूफानों को बर्दाश्त करता है, वो आंधियों को बर्दाश्त करता है, सैलाबों को बर्दाश्त करता है, हर सूरत हाल में से गुजरता है, लेकिन आज भी वो सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है, क्योंकि उसकी बुनियाद जो है वो रेत नहीं है, उसकी बुनियाद जो है वो करोड़ों साल हीट और प्रेशर में से गुजर के बनी है। तो खुदा हमें भी चाहता है कि हम भी जो है वो मजबूत बने। और पतरस जो है, हम इसकी मिसाल देखते हैं। खुदा ने इसको क्या कहा है कि ये रॉक है, ये चट्टान है, और इसके ऊपर जो है मैं कलीसिया बनाऊंगा। पतरस जो है ये ग्रीक वर्ड पेट्रोस से निकला है, जिसका मतलब है मजबूत पत्थर या मजबूत चट्टान। और पतरस का भी आप सफर देखें तो हमें ऐसे लगता है कि ये पहले एक रेत का टीला था। रेत का टीला कैसा होता है? ये हवा इसको जहां भी ले जाती है ये उड़ के चला जाता है। आज पहाड़ एक जगह पे है, कल हवा से पहाड़ दूसरी जगह पे कोई और पहाड़ बन जाएगा, तीसरी जगह कहीं और, कहीं कभी वो फ्लैट हो जाता है। आप इसके ऊपर पांव रखते हैं, पांव अंदर जो है वो धंस जाता है। पतरस की जिंदगी भी जो है हमें देखते हैं हम ऐसे ही थी। वो भी जल्दबाज था, कोई भी बात कह देता था। इवन कि खुदा यीशु मसीह ने उसको 2 दफा कहा कि ऐ शैतान दूर हो। उसने 3 दफा खुदा यीशु मसीह का इनकार किया, क्योंकि ही वॉज अ रॉक ऑफ सैंड। लेकिन एक वक्त आया कि जब रूह कुदूस उसके ऊपर नाज़िल हुआ, तो फिर वही रेत का टीला जो है वो एक मजबूत चट्टान जो है वो बन जाता है, और वो जो है 3000 को, 5000 को, और कितने लोगों को जो है वो मसीह करता है। जहां से वो गुजरता है उसका साया पड़ता है और लोग शिफा पाते हैं। उसने मसीह से बड़े काम किए, और ज्यादा कलीसिया में लोगों को शामिल किया। ये रॉक है, क्योंकि रॉक की बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रखी। पतरस ने अपनी बुनियाद खुद नहीं रखी, अपनी फिलॉसफी के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह ने खुद रखी। यीशु ने कहा कि तेरे ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा। दिस इज द रॉक। वो भी शुरू में इतना मजबूत नहीं था। हमारी जिंदगियां भी पतरस की तरह ही हैं। हम भी अपनी जिंदगियों में बाज का ईमान की कमी होती है, बाज का सूरत हाल जो है वो ऐसी चल रही होती है, हम भी अपनी जिंदगियों में इसी तरह चलते हैं। लेकिन जब हम मसीह को अपनी बुनियाद रखते हैं तो फिर आप जो है वो शमौन से पतरस बन जाते हैं, मजबूत रॉक बन जाते हैं। वो पतरस जिसने 3 दफा इनकार किया, उसने उल्टी सलीब जो है वो ली।
परसिक्यूशन जो है वो बर्दाश्त की। खुदा खुद अपने आप को जो है वो रॉक से तशबीह देता है, और कलाम में हम कई जगह पे देखते हैं कि खुदा को जो है वो रॉक से, चट्टान से तशबीह दी जाती है। इस तरह 4 बाब उसकी 32वीं आयत में आप देखें कि वही चट्टान है, उसकी सनत कामिल है। और जब दाऊद जो था वो फिलिस्तियों से भाग रहा था, साउल से भाग रहा था, दुश्मन उसके पीछे पड़े हुए थे, उसकी जान के दर के ऊपर थे, उसको मारने को थे, तो वो ये गीत गा रहा था। 2 शमूएल 4 बाब और उसकी 22वीं आयत, जब उसने अपने दुश्मनों पर फतह पाई और खुदा ने उसको फिर से सरफराज किया, तो वो कहता है कि खुदा मेरी चट्टान है। खुशी का गीत गाता है। किसको चट्टान कह रहा है? खुदा को, कि खुदा जो है मेरी चट्टान है, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। जब वो दश्त में भाग रहा था, पहाड़ों में भाग रहा था, उसका भरोसा जो है किसी हथियार के ऊपर नहीं था, उसका भरोसा है किसी आदमी के ऊपर नहीं था, उसका भरोसा जो है अपने जोरे बाजू पे नहीं था। उसने तो पहले ही जाके जूलियत को शिकस्त दे दी हुई थी, पहले से ही वो तो मसा किया हुआ था। वो कहता तो मैं तो मसलशुदा हूं, मुझे किस चीज की वो है, लेकिन उसका भरोसा जो है वो खुदा के ऊपर था। और जब खुदा उसको सरफराज करता है तो ही गिव्स ड्यू क्रेडिट टू गॉड, और खुदा को जो है वो रॉक कहता है। ज़बूर 18 उसकी 31वीं आयत में हम देखते हैं और हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है? दाऊद किसको चट्टान कह रहा है? हमारे खुदा को छोड़कर और कौन चट्टान है? वो मजबूत चट्टान है, वो मोहकम किला है, वो छुपने की जगह है। कभी आपने उकाब को देखा कहां पे जो है वो अपना घोंसला बनाता है? ऊंची चट्टान के ऊपर जो है वो अपना घोंसला बनाता है। वो कोई नीचे सेफ जगह नहीं ढूंढता, वो ऊंची चट्टान के ऊपर। उसे पता है आंधी आएगी, तूफान आएगा, चट्टान अपनी जगह से भी नहीं हिलेगी, उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। वो ऊंची हवा में उड़ता है, ऊंची जगह ही उसका मस्कन होता है। हमें भी खुदा ने सर बनाया है, दुम नहीं बनाया। हम जो है वो नीची जगह पे क्यों अपना मस्कन बनाते हैं? नीची जगह पे क्यों ऑपरेट करते हैं? छोटा सा ईमान जो है वो क्यों रखते हैं? हम तो उसके नाम से कहलाए जाते हैं, हम तो उसको अब्बा कहकर, बाप कहकर पुकारते हैं। मसीह के हम मेरास हैं, हम अलहदा किए हुए लोग हैं, हम शाही कहनों का फिरका है, हमारे लिए अब्राहम की सारी बरकत है। तो हम क्यों नहीं जो है वो खुदा के ऊपर तवक्कुल करते? अपना ईमान जो है वो ऊंची जगह के ऊपर क्यों नहीं रखते? यीशु मसीह को भी चट्टान के साथ जो है वो तशबीह दी गई। 1 कुरिन्थियों उसका 10वां बाब 4वीं आयत देखें, इसमें खुदा यीशु मसीह को रूहानी चट्टान जो है वो कहा गया। और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। आमीन। ये वो चट्टान है जो आपको प्रोवाइड करती है, ये वो चट्टान है जो उनके साथ साथ चलती थी, ये वो चट्टान है जो उनको पानी देती थी। पानी से क्या मुराद है? जिंदगी है। वो चलते रहे, उनके ना जूते घिसे, ना उनके कपड़े छोटे हुए, उनको मन भी दिया जाता था, फ्रेश पानी भी दिया जाता था, हर प्रोविजन जो है उनको दी जाती थी, क्योंकि मसीह चट्टान की मानद जो है वो उनके साथ साथ था। फिर हमने एक हवाला देखा, दानियल 2 बाब, जो कि नबूकदनेस्सर बादशाह जो है एक ख्वाब देखता है, और वो एक ऐसा स्टैचू जो है वो देखता है जिसका सर जो है वो सोने का है, और उसका जो सीना है वो चांदी का है, और उसका पेट और थाई जो है वो ब्रॉन्ज का है, और उसकी टांगे जो हैं वो लोहे की हैं, पांव जो है वो लोहे और मिट्टी से बने हुए हैं। वो एक ऐसा बड़ा फिगर देखता है, वो डर जाता है, खौफ में आ जाता है। और दानियल उसकी जो वो, और फिर क्या देखता है कि एक चट्टान जो है जिसको किसी ने नहीं काटा, किसी हाथ ने नहीं काटा, वो चट्टान जो है वो उसे आगे लगती है, और वो बुत जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और वो चट्टान जो है वो बाद में सारी दुनिया के ऊपर जो है वो आ जाती है। ये आसमान की बादशाही को जाहिर करती है। वो चट्टान जो कि जिसने
सारे बुतों को तोड़ दिया, सारी सल्तनतों को रेजा रेजा कर दिया, और वो चट्टान जो है बाद में सारी दुनिया उसके कब्जे में आ जाती है। वो चट्टान जो है नए यरूशलेम को, बादशाही को जाहिर करती है। तो चट्टान जो है वो बादशाही को, नए यरूशलेम को जो है वो जाहिर करती है। अब्राहम ने जो कुर्बान गाह बनाई वो भी चट्टान के ऊपर बनाई। खुदा ने जो शरीयत दी वो भी मूसा को कोहे सीना पर यानी कि पहाड़ के ऊपर जो है वो दी। एलिया ने बाल के नबियों को जो है शिकस्त दी, वो भी चट्टान के ऊपर दी। सयून को जो है कोहे मुकद्दस जो है वो कहा गया है। तो हमें जरूरत है कि हम भी मजबूत ईमान रखें और चट्टान की तरह जो है मजबूत ईमान रखें। आइए अपनी फैमिली के लिए जो है मजबूत चट्टान बन जाए, अपने बच्चों के लिए मजबूत चट्टान बन जाए, अपने अदारे के लिए मजबूत चट्टान बन जाए, अपने लीडर्स के लिए मजबूत चट्टान बन जाए। हमें जो है वो एक रेत का घर जो है बनने की जरूरत नहीं है, मजबूत चट्टान बनने की जरूरत है। लाइक इब्राहिम जो है वो किस तरह पसंद आया, उसका ईमान जो था वो खुदा के ऊपर था, और ईमान किसके ऊपर था? एक प्रॉमिस के ऊपर था, एक वादे के ऊपर था, और इस वादे के ऊपर जो है उसने जो है वो अपनी जिंदगी गुजारी, और बुढ़ापे के आलम में खुदा ने उसको औलाद दी, लेकिन उसने वो औलाद भी कुर्बान करने से गुरेज नहीं किया, क्योंकि उसका ईमान जो था वो चट्टान की मानद मजबूत था। हमें उस चट्टान की मानद जो है ईमान की जरूरत है। अय्यूब जो है किस तरह की सूरत हाल में गुजरा, एक ही वक्त में उसके पास से सब कुछ चला जाता है, लेकिन वो भी जो है वो इब्लीस के सामने चट्टान की तरह मजबूत रहा। उसका सारा कुछ चला गया, लेकिन एक चीज नहीं गई, वो खुदा के ऊपर तवक्कल, खुदा के ऊपर भरोसा, क्योंकि वो चट्टान की मानद था, मजबूत था। दानियाल जो था वो गैर मबूदों के आगे नहीं झुका, उसको शेरों की मांद में डाल दिया गया, क्योंकि वो चट्टान की मानद मजबूत था। उसका तवक्कल जो था वो खुदा के ऊपर था। जब साउल दाऊद के पीछे पड़ा था और कोई भी होप नहीं थी, लेकिन फिर भी दाऊद जो था उसका ईमान खुदा के ऊपर था। स्टेफनस जो है नए अहद में हम देखते हैं वो बहादुरी की चट्टान है। किस तरह उसको संसार भी किया जाता है, उससे पहले वो अपना सरमन सुना के जो है वो संसार होता है। वो बहादुरी की चट्टान बना। पौलुस जो है वो बर्दाश्त की चट्टान बना। उसने क्या क्या चीजें जो है बर्दाश्त की। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, क्या क्या उसके साथ नहीं हुआ। वो बर्दाश्त की चट्टान है। हम किस तरह जो है मजबूत चट्टान बन सकते हैं, उसके लिए हमने हवाला पढ़ा मत्ती 7 बाब और उसकी 24 से 25वीं आयत तक। हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको कहते हैं कि अपनी बुनियाद जो है वो कलाम के ऊपर आप रखें। जब खुदावंद यीशु मसीह मजबूत चट्टान की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ रेत की बात कर रहे हैं, तो जो रेत है बात का ये भी डिपॉजिट हो होकर एक चट्टान की मानद बना देती है और बड़ी स्मूथ सी ऊपर से होती है। वो देखकर आपको लगता है कि यार ये बेस्ट जगह है घर बनाने के लिए, लेकिन जब आप उसके ऊपर घर बनाते हैं तो वो भुरभुरी सी होती है। जब पहले बारिश आती है या तूफान आता है तो वो जो चट्टान लग रही होती है दर हकीकत वो चट्टान नहीं होती, वो रेत का डिपॉजिट होता है और सैलाब जो है उसको उड़ा ले जाता है, वो उसकी बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन खुदा का कलाम जो है उसको चट्टान की मानद, चट्टान पे घर बनाना उस वक्त सबसे मुश्किल काम था। उसकी वजह यह थी कि चट्टान कभी भी एक जगह पे इवन नहीं होती। खुदा ने पतरस को क्या कहा कि इस चट्टान के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर, पत्थरों के ऊपर नहीं, एक की बात हो रही है, एक पत्थर के ऊपर जो है मैं कलीसिया बनाऊंगा। और एक यहां पे भी यीशु मसीह कहते हैं कि चट्टान के ऊपर घर बनाना, उसके लिए आपको एक पत्थर की जो है वो एक फ्लैट लैंड की जो है जरूरत होती थी, और ऐसी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर आपको वो जगह मिल जाती थी तो उसके ऊपर जब आप घर बनाते थे, तो जब वो दादा बनाता था तो पोता, उसका पोता जो है वो उस घर में रहते थे। इतना मजबूत वो घर था, क्योंकि उस घर को ना आंधी, ना तूफान, ना किसी भी तरह की कोई आफत है वो जरर पहुंचा सकती थी। तो यही चट्टान है जो कि कलाम है।
جب آپ کلام پڑھتے ہیں، کلام سنتے ہیں، آپ اس کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کرتے، آپ اس کو مشکل حالات میں اپنی زندگیوں میں اپلائی نہیں کرتے، تو آپ اس کی بنیاد نہیں بناتے۔ کلام سننا جو ہے اس سے بنیاد نہیں بن جاتی، کلام جو ہے اس کے اوپر زندگی گزارنے سے، اپنے ہر کام میں جو ہے اس کو مینیفیسٹ ہوتے ہوئے دیکھنا، اس کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ، اس سے جو ہے وہ چٹان بنتی ہے، اس سے جو ہے آپ کا مضبوط گھر بنتا ہے۔ اسی طرح خوف کے اوپر جو ہے وہ قابو پا کر، خوف ہماری زندگیوں کو لے بیٹھتا ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ خوف میں جب زندگی گزارتے ہیں تو کبھی کبھی بڑے بڑے کام نہیں کر پاتے، ان کے اندر بڑا بڑا پوٹینشل ہوتا ہے، بہت خدا نے آپ کو گفٹس دیے ہیں، لیکن وہ گفٹس اس وقت تک پورے نہیں ہوتے جب تک آپ اپنے خوف کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پاتے۔ کیا پتہ خدا نے آپ کو ایک بہت بڑی اسکل دی ہے بولنے کی، لیکن وہ پہلی دوسری تیسری دفعہ بولنا جو ہے مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کے اوپر قابو پاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ پالوس کی طرح جو ہے جگہ جگہ کلام سناتے پھریں گے، آپ جو ہے پطرس کی طرح جو ہے وہ دنیا کے آگے جو ہے گواہی دیں گے، شاگرد بنائیں گے اور مصیبتوں کو برداشت کریں۔ زندگی کی حقیقتوں میں سے سب سے پہلی اور بڑی حقیقت یہ ہے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں۔ جب تو موت کی وادیوں میں سے گزرے گا تو موت کی وادیوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ ویلی آف ڈیتھ جو ہے یہ خوفناک ہے، یہ ڈرا دینے والی ہے، یہاں پہ اندھیرا ہے، یہاں پہ ڈیول ہے، یہاں پہ ابلیس ہے، یہاں پہ وہ سب کچھ ہے جو آپ کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر آپ کا توکل خدا کے اوپر ہے، ایمان خدا کے اوپر ہے، کلام کے اوپر ہے، روح آپ کے ساتھ رہنمائی کر رہا ہے، تو یہ موت کے وعدے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو مصیبتوں میں سے گزرنا یہ بھی ہمیں چٹان کی طرح مضبوط بناتا ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ مسیح میں پیوستہ رہیں۔ ہم اپنے زندگیوں میں شروع میں بہت یسوع کے اوپر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ جوش، وہ جذبہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل جو ہے بعض کا کسی ریلیشن شپ کے اوپر، کسی لیٹر کے اوپر، کسی جاب کے اوپر، کسی کی ہاں کے اوپر، کسی کی نہ کے اوپر، صورتحال کے اوپر، ملکی حالات کے اوپر، یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کے لیے کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں، لیکن آپ ان سب چیزوں کی وجہ سے اپنی زندگی نہیں گزارتے۔ آپ زندگی گزارتے ہیں یسوع مسیح کے اوپر بھروسہ ہونے کی وجہ سے، توکل ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ چٹان جو ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ رہا، ان کو پرووائڈ کرتا رہا، تو وہ آج آپ کو کیوں نہیں دے گا؟ آپ کے لیے تو اس نے خون بہایا، آپ کے لیے تو اس نے جان دی، آپ کے لیے تو اس نے جو ہے سارا اتنا بڑا کام کیا، آپ کے گناہ جو ہے اپنے اوپر لے لیے، تو آپ اس کے اندر پیوستہ کیوں نہیں رہ سکتے؟ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس چٹان میں پیوستہ ہو جائیں، اس چٹان میں سے پانی پیئے جس نے اس وقت دیا اور زندگی کے چشمے جاری ہو گئے۔ وہ آج بھی آپ کو دیتا ہے، آج بھی آپ کے لیے وہ پانی بہتا ہے، لیکن بعض کا ہم کسی کی ٹھنڈی بوتل کے اوپر، کسی اور چیز کے اوپر ریلائے کر جاتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ زندگی کے پانی کے اوپر ریلائے نہیں کرتے جو کہ ہمارے لیے آج بھی موجود ہے، آج بھی بہتا ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت زیادہ برکت۔